اس کو کبھی اریسٹ نہیں کر پا رہے تھے, آج مشکل سے ہمارے قبضے میں آیا. وہ نوجوان اب بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, میں نے کوئی جرم نہیں کیا, مجھے چھوڑ دو. تو کہتا ہے اس کو تم کرو گے کیا, اس کو پکڑ کو نہیں, اس کو کرو گے کیا. پولیس کہتے ہیں اس کو بھی لے کے حوالات میں ہم ڈال دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, اس کے کاغذات تیار کریں گے, اس کے پیپر تیار ہو جائیں گے تو اس پھر ہم البانیہ کنسلٹ کریں گے, رابطہ کریں گے, وہاں کی حکومت سے بات کریں گے اور اس کو یہاں سے اٹھا کر البانیہ بھیج دیں گے. جیسے ہی سپاہیوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے مدینے سے نکال کر البانیہ بھیج دیں گے, اللہ اکبر, وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر رونے لگا اور رو رو کر کہہ رہا خدارا مجھے مدینے سے نکالا, اہل زباں تمہارے لیے. یہ جو کچھ ہے انہی کے لیے ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان. اور میرا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا ظاہر ہی نہیں کرتا. اللہ اللہ. وہ میرے نبی, ان کے میلاد کا مہینہ ہے اور آج عشاقان مصطفیٰ, دیوانے مصطفیٰ, نبی کے چاہنے والے آج نبی کا تذکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں نبی سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی کا تذکرہ کیا کریں. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ان کی سہیلیاں آتی ہیں. حضرت حلیمہ کو جانتے ہیں نا, کون تھی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں اپنے گاؤں لے کر آئی, چھوٹی سی عمر میں یہ اپنے گاؤں لے کر آئی. آقا کو یہ کیا سوارتی سنبھالتے, آقا نے نوازا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیاں آتی ہے کہ اے حلیمہ تو بڑی لاپرواہ ہو گئی ہے, جب سے تو مکہ کے بچے کو لے کر آئی ہے تو بڑی لاپرواہ ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی وہ کیسے؟ سہیلیاں کہتی ہیں تو اتنی لاپرواہ ہو گئی ہے, ساری رات چراغ چلا کر تو گھر میں بھول جاتی ہے. پہلے تو لائٹ کا دور نہیں تھا نا, چراغ جلاتے تھے, رات کو چراغ کو بند کر دیتے کہیں آگ نہ لگ جائے. لیکن حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ساری رات روشن رہتی تھی. تو سہیلیوں کو تشویش ہوا, آ کر کہتے اے حلیمہ تو بڑی لاپرواہ ہو گئی ہے, جب سے تم مکہ کے بچے کو لے کر آئی ہے تو بڑی لاپرواہ ہو گئی ہے. آپ پوچھتی وہ کیسے؟ تو سہیلیاں کہتی ہے تو ساری رات چراغ جلا کر تو بھول جاتی ہے, اتنی لاپرواہی. حلیمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے, سبحان اللہ, وہ کہتی ہے جب سے میں نے مکہ سے بچہ کو لایا میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان, میں نے چراغ گھر سے نکال دیا ہے, یہ ساری رات جگمگ کرتا ہے, میرا گھر اجالا ہو جاتا ہے. آپ کے شہزادے کہتے ہیں ماں تو کیسے بچے کو لے کر آ گئی ہے؟ میں بکریوں کو لے کر جاتا ہوں تو میرے ساتھی مجھ پر رش کرتے ہیں کہ تو کیا کھلاتا, تیری بکریاں اس قدر فروا ہے, ہم تو بڑی مشقت اٹھاتے ہیں پھر بھی کمزور ہے. میرے ساتھی مجھ سے رش کرتے ہیں کہ تیرے بکریاں اتنے فروا کیسے. اور کیا بتائیں, میرے ساتھی اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز مشقت اٹھا کر پہاڑ کے دور تک جاتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں چارہ کھلانے کے لیے, ہریالی تلاشنے کے لیے دور دراز جاتے ہیں. لیکن قربان جائے یہ کیسا بچہ ہے, یہ جس راستے سے گزر جاتا ہے ہریالی اٹھ جاتی ہے, یہ جس راستے سے چلتا ہے وہاں سے گھاس نمودار ہوتے, میری بکریاں یہیں چر لیتی ہیں, مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تو اور میرے ساتھی دھوپ کی مشقت میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, لیکن قربان جائیں یہ جدھر سے چلتا ہے بادل کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. میں بادل کے سائے میں دن گزار لیتا. وہ میرے نبی, وہ میرے آقا, اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے, اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑا ہوتا ہے. اور جب آپ بستر میں ہیں, انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کبھی چاند کو ادھر کرے تو چاند ادھر آ رہا ہے, کبھی ادھر انگلیاں کرتے تو چاند ادھر جا رہا ہے, کبھی چاند کو ادھر پھیر رہے ہیں. کیا ادا ہے میرے آقا کی. اللہ کریم ہمیں اپنے نبی سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلام میں اسی نبی کی محبت میں تھوڑے دیر میں جمع ہوئے ہیں. نبی سے محبت اللہ سلامت رکھے. مفتی اعظم فرماتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں گا. ہم اپنے جان سے بھی زیادہ اس نبی سے محبت کریں. اللہ اس محبت کو باقی رکھے, مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. لیکن اے میرے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر غور کریں. وہ نبی کا تذکرہ آپ یہ لیچو کے لائق اسی محبت میں کر رہے ہیں, چندے کر کے آپ قافلہ نکالنے والے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں اس نبی کی محبت میں. کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ نبی کا میلاد منانا تو میری چاہت ہے, میرے نبی کو کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ میلاد منانا, یہ گھر کو سجانا, یہ تو میں چاہتا ہوں, میری خوشی ہے اس میں, میرے نبی کی خوشی کس میں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟
मेरे नबी किससे नाराजगी होगी? मेरे नबी क्या, मैं ऐसा कौन सा काम करूं मेरे नबी मुझसे खुश हो जाएंगे? अल्लाह करे हम नबी की खुशनुदी को तलाशने वाले बन जाए। और नबी की खुशनुदी कैसे पाते थे? सहाबी रसूल हैं, आका के बारगाह में हाजिर हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया, साहबा को फिर से तशवीश हुआ, आगे आए, आका ने फिर से फेर दिया, वो सहाबी फिर से आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा अपना चेहरा फेर लिया। अल्लाह अकबर। आका ने अगर चेहरा फेर लिया तो उनको कितना बड़ा गम होगा। बड़े परेशान हुए, आकर अपने साथियों से पूछने क्या बात है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से नाराज है? साथियों ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम गुजर रहे थे, तुम जो इमारत बना रहे थे उसको मेरे आका मुलाजा फरमाया और कहने लगे कौन बना रहा है? हमने तुम्हारा नाम बता दिया। हो सकता है ये इमारत बनाना, घर बनाना शायद आका को पसंद नहीं है, इसीलिए शायद चेहरा फेरते हैं। अल्लाह अकबर। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, सहाबी खदशा जाहिर कर रहे, हो सकता है कि तुम्हारा इमारत बनाना नबी को पसंद नहीं, ये कोई कंफर्म नहीं है, खदशा था, डाउट है कि हो सकता है इमारत बनाना, तुम्हारा घर बनाना मेरे आका को शायद पसंद ना हो, इसीलिए आका ने चेहरा फेरा हो। अल्लाह अकबर। साहब ये रसूल सुनते हैं, मस्जिद से उठकर सीधा अपने घर पे आते हैं और अपने घर को ढा देते हैं, कहते हैं जो मेरे आका को पसंद है उससे जमीन पे खड़े रहने का कोई हक नहीं। अल्लाह। एक मौका था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शहजादे अर्ज करते हैं, बाजान एक जंग का मैदान था, मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, दौरान जंग आप मेरे तलवार के सर पे आ गए, मैं आपके मुकाबले में काफिरों की तरफ से लड़ रहा था और आप नबी पाक की मोहब्बत में मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। दौरान जंग एक ऐसा मौका आया कि आप मेरे तलवार के सर पे थे, चाहता तो मैं आपको हलाक कर देता, चाहता तो मैं आपको शहीद कर देता, लेकिन बाप की मोहब्बत काम आ गई, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, कहते हैं बेटा अगर जंग के मैदान में तू मेरे तलवार के साथ पे आता तो बेटा समझ कर नहीं छोड़ता, बल्कि नबी का दुश्मन समझ के कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। ये थे हमारे सहाबा कराम के जज्बात, सबसे बढ़कर नबी की मोहब्बत। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। प्यारे इस्लाम भाइयों, अर्ज कर रहा था, हमारी चाहत है कि हम ये मिलाद मना रहे हैं, मेरे नबी को क्या पसंद है, मेरे नबी क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरे आंखों में कहता है, फरमाया ना नमाज में मेरी आंखों में कहता है। आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? नबी जाना चाहते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फसाद उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब। आज सुन्नत मुस्तफा से हम दूर हैं, नबी का मोहब्बत का दावा तो करते हैं, नबी के आशिक का तो दावा तो करते हैं, नमाज हमसे नहीं होती, सुन्नत मुस्तफा हमसे नहीं होती, नबी के अखलाक अपनाने का हमारा शौक नहीं है, नबी का सब्र अपनाने का हमारा ज़ौक़ नहीं है, नबी की इबादत का हमारे पास हिम्मत नहीं है। ये कैसा आशिक है? आज हमारे दरमियान से सब्र छूट गया, हमें परवाह नहीं है, नबी की सीरत छूट रही, हमें कोई परवाह नहीं है, नबी के अखलाक हम छोड़ रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, नबी की पसंदीदा नमाज हम छोड़े बैठे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। कैसा आशिक है? पिछले दिनों व्हाट्सएप पे कोई एक वीडियो डाला था, एक तुर्क अपने जबान में कुछ कह रहा था, किसी मेहरबान ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके डाल दिया, मैं उसको अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। वो तुर्क कह रहा है, मस्जिद नबी के बाहर खड़े होकर कह रहा है कि मैंने देखा कि दरवाजे पे कुछ पुलिस आ गए, अलर्ट, मानो किसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी जुस्तजू बढ़ी कि क्या होने वाला, मैं भी जरा देखूं। आगे बढ़कर मैं भी दरवाजे के करीब पहुंचा, ये पुलिस वाले गोया दरवाजे पे अलर्ट होकर है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी जुस्तजू बढ़ी, क्या होना है देखूं मैं जरा। इतने में दरवाजे से एक पतला दुबला 30-35 साल नौजवान दरवाजे से बाहर आया। जैसे ही बाहर आया ये सिपाही लपक के उसको पकड़ना था, वो छुड़ाते हुए कहता छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा जुर्म क्या है, मैंने कौन सी गलती की, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मुझे छोड़ दो। पुलिस वाले उसको मजबूती से पकड़ कर कहते तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया, परसों से तू हमें चकमा दे रहा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो पतला दुबला नौजवान अब भी कह रहा मुझे छोड़ दो, मैंने कौन सा जुर्म किया, ना मैं ये भीख मांगता हूँ, भीख मांगना भी जुर्म है। वो कहता ना मैं भीख मांगता हूँ, ना मैंने चोरी की है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं कोई गुनाह नहीं किया, मुझे छोड़ दो। पुलिस को छोड़ नहीं रहे। तो कहता मैं आगे बढ़ा और कहने लगे सिपाही इस बेचारे पर रहम करो, क्यों इसको पकड़ रहे हो, जबकि ये कह रहा है ये बेकसूर है, ये बेगुनाह, इसको क्यों पकड़ रहे हो?
पुलिस कहते हैं तुर्क तू अपने काम से काम रख, हमारे काम में दखल अंदाजी मत कर। तुर्क कहता मैं दखल अंदाजी क्यों ना दूं, जबकि ये कह रहा है इसने कोई जुर्म नहीं किया है, ये कह रहा है इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसको क्यों पकड़ रहे हो? पुलिस कहते हैं अभी कह रहा है ये अल्बानिया नौजवान छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बांग्लादेश जैसे मुल्क है, अल्बानिया एक मुल्क करोगे और हर मुल्क का अपना कानून रहता है, करोगे क्या? पुलिस कहते हैं ये अल्बानिया नौजवान, पुलिस कहते हैं कानून का हवाला पर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे इसको, जब ये पकड़ने की कोशिश करता है ये भाग कर, इसके पेपर तैयार हो जाएगा तो इसके हम अल्बानिया कंसर्न करेंगे, राब्ता करेंगे, वहां तक हुकूमत से बात करेंगे, एहतराम की वजह से, आदत की वजह से अल्बानिया के अंदर से पकड़ना नहीं चाहते, मस्जिद से बाहर नहीं निकल, सिपाहियों ने कहा है दरवाजे में मदीने से निकाल जाता, वो दरवाजा निकल जाता है, कभी सारे नौजवान आते हैं तो रोने लगा, खुदा मुझे मदीने से जुदा ना करो, मुझे मदीने से कहीं दूर ना ले जाओ, मैं मदीने से जाना नहीं चाहता, मैं मदीने से बाहर नहीं जाना चाहता। अब पुलिस वाले और मजबूती से पकड़ लिए, बोले अब तो बहुत हो गया, अब तुझे तो हम भेज कर ही रहेंगे। वो तड़प तड़प कर कह रहा है, रो रो कर कह रहा है कि मुझे मदीने से जुदा ना करो, मुझे मदीने से जाने ना दो, रो रहा है। और फिर रोते रोते कहता थोड़ी थोड़ी मोहलत दो, मैं अपने नबी से कुछ बातें करूं। अल्लाह, वो आशिक कहता है थोड़ी तो मोहलत दे दो, मुझे मेरे नबी से कुछ बातें करनी है। पुलिस कहता है फिर तू कुछ चकमा देने वाला है, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे अभी तो लेकर ही जाएंगे। तू कहता है बेचारा पतला दुबला तुम्हारा 8-10 पुलिस को कैसे चकमा देगा, छोड़ दो, हाथ ढीली कर दो, कुछ बोलना चाहता बोलने दो उसको। तुर्क के इसरार पे पुलिस वाले उसके हाथ को ढीली कर दिया। अब वो आका दो जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा है मेरे प्यारे इस्लाम में तवज्जो के साथ सुने। वो नौजवान क्या जवाब देता है, वो कहता है या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में मैं अपना वतन छोड़ा आपके दयार पे रहने के लिए। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे तय किया था ना कि आपकी मोहब्बत में आपके दयार में रहने के लिए वतन छोड़ूंगा, मैंने छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था मैं आपके दयार में रहने के लिए अपने कारोबार बंद कर दूं, मैंने कारोबार भी बंद कर दिया। और तो और या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहने के लिए बीवी बच्चों को छोड़ूंगा, कहा था मैंने वो भी छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में रहने के लिए वतन भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया आपके कदमों में रहने के लिए, और आपने मौका भी दिया था। या रसूल अल्लाह, बरसों से आपने करम भी फरमाया था, मैं आपके कदमों में दिन गुजार रहा था, ये पुलिस वाले मुझे दूर कर देंगे, ये पुलिस वाले चाहते हैं कि आपके कदमों से मुझे दूर कर दे। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदम से दूर नहीं होना चाहता। या रसूल अल्लाह, ये मुझे ले जा रहे हैं, आप बचाव कीजिए, आप नहीं देखते मुझे, ये आपके कदमों से दूर लेकर चले जा रहे हैं। या रसूल, आप तशरीफ लाइए, आप करम फरमाइए, मुझे बचाइए, मुझे जाने मत दीजिए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते वो तड़प कर कहता या रसूल अल्लाह, आप दखल अंदाजी दीजिए और मुझे जाने मत दीजिए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, पुलिस वाले ने एक डंडी लगा दी, वो जमीन पे गिर गया, चोट इतनी ज्यादा नहीं थी, वो जमीन पे गिर गया। उसको कहते रहे चलने दी। वो कहने लगा, जैसे छड़ी लगी वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा और फिर खामोश हो गया। पुलिस थोड़ी देर इंतजार कर आकर हिला रहे हैं तो उठने का नाम नहीं। तुर्क कहता है जब इसने कहा कि या रसूल अल्लाह दखल अंदाजी कीजिए, आप बीच बचाव के लिए तशरीफ लाइए और मुझे अपने कदमों से जाने ना दे। तुर्क कहता है मेरे नबी ने करम फरमा दिया और अपने गुलाम को कयामत तक अपने कदमों पे जगा दिया। है मेरे प्यारे प्यारे इस्लाम में गौर करें, एक आशिक मुस्तफा मदीना छूट जाए इस गम में अपनी जान दे देता है, अपनी जान दे दी, मदीना नहीं छोड़ा। ये कैसा आशिक है, नमाज छोड़ दिया कहता मैं आशिक रसूल। ये कैसा आशिक है, फिल्में ड्रामे देख रहा है कहता मैं आशिक रसूल। ये कैसा आशिक है, माँ बाप की नाफरमानी करता है कहता मैं आशिक रसूल। ये कैसा आशिक है, जुआ सट्टा खेल रहा कहता मैं आशिक रसूल। अरे वो तो दयारे मुस्तफा छोड़ने के गम में अपनी जान दे दी, हमने नमाज छोड़कर बरसों गुजारे, हमें नींद आ जाती है, हमारा खाना भी हजम हो जाता है, हमारे चेहरे में मुस्कुराहट भी आ जाती है, जबकि मेरे आका ने फरमाया नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है, मैंने नमाज